जिनके गले में मृत्यु का पाश पड़ा है और जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, बहुत दृढ़ पाश होता है, ऐसे पाश को भी जो तोड़ता है, इस प्रकार का शास्त्र आयुर्वेद है। ऐसा जिस आयुर्वेद में कहा गया है, उस आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होगी, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? वी शुड बी रेडी विथ आयुर्वेदिक इमरजेंसी किट ऑलवेज। और दूसरे दिन को एक बूढ़ा आदमी था जो अब क्या हालत होगी, उसको जो बचा पाएंगे उसको भी ऐसी स्थिति में था, और दूसरे दिन चलने नहीं मिल रहा। बाद में वो जो मेडिकल ऑफिसर्स थे वो उन्होंने कहा कि फिर उसको पालना होगा ही नहीं, ऐसा आयुर्वेद की मेडिसिन से कैसे हो सकता है? हमने कहा रुकिए, इसलिए हमने उसका स्वैब लेकर भेज दिया लैब में। उसका रिपोर्ट आने के बाद उनको दिखाया कि पॉजिटिव था, तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें प्रथम स्थान समाज में प्राप्त हुआ है। दिस इज अ वैदिक रिचार्ज एंड इन विच ऋषि सेज दैट मा विधेर न मरिष्यसि जरदष्टिं प्रणोमित्वाम। So the Rishi is saying that do not worry, do not get panic, you will not die. So he is giving assurance. So that means they were having some emergency treatment even at that time, and that on the basis of that he was giving that kind of assurance. And in Ashtanga Hridaya, in the last chapter, it is said that etadi mrityu pashanam akande chedanam dridam rogotrasida bhitanam raksha सूत्रकम। तो जिनके गले में मृत्यु का पाश पड़ा है और जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, बहुत दृढ़ पाश होता है, ऐसे पाश को भी जो तोड़ता है, इस प्रकार का शास्त्र आयुर्वेद है। और रोगियों की रक्षा करता है वो, लेकिन रक्षा सूत्र बिना बांधे ही रक्षा कर लेता है, ऐसा इसमें कहा गया इस संदर्भ में। तो ये हमारे गुरु वैद्य चूड़ामणि कोलटकर सर का एक प्रिय सूत्र था। तो वो ये कहते थे कि ऐसा जिस आयुर्वेद में कहा गया है, उस आयुर्वेद में इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होगी, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो सो देयर इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद, बट इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड लर्न अबाउट दैट and we should use it and find out the results. Atya and Atya, I will not go in details of the scientific aspect of that or textual aspect of that, but Atya is described as Vinash and Atya is described as Atya Vinasho Bhavati Asmat. So usually Atya Chikitsa means when there is a fear of death, and that time the treatment which is done, that is usually Atya Chikitsa. But in today's lecture, not just about the patients who are on the verge of the death, but on some acute conditions also, we will see some experiences which I came across. And Hemadri also has said that yat karyam kala pratiksham na sahate tad atyekam. This is also very important because immediately sadhya phaladai, ashu gunakari, such kind of treatment is required in these conditions. And we have to act instantaneously, immediately we have to ask without wasting time. That is said here. So some Vaidya called me from another state and asked that her grandfather was in some emergency condition, so what should be given to him? So I suggested one medicine. Then on the third day she called me and told that sir, that is not available. I searched for it, but that is not available now. What I should do? So I suggested some alternative on that. Then on the third, fourth day, she called again and told that now which anupan, how many times I have to repeat. That I told. And then that evening she called and said that, sir, before administrating that medicine only, unfortunately my grandfather expired. So Atyeka Chikitsa Kala Pratiksham Na Sahate. Instantaneously we have to start acting. If that medicine is not available, some alternative for that. But immediately we have to act. And that specifically Ayurvedic doctors, Vaidyas have to learn. Because in many Ayurvedic institutes also, this kind of situations is there. That this medicine is required, then it is with somebody. It is kept in a locker. That key of that locker is with someone. He has gone for a tea. Other person who knows about that, he is on leave. If something happens. So usually, what I used to do when I was in college also, that keep the medicines always with us. We have to keep emergency medicines always with us, so that instantaneously, anytime, whenever required, we want. And even now also, I am keeping some medicines with me.
So if we are talking about emergency medicine, and if suppose something happens, then we will say that, oh, I know everything, but presently I don't have any medicine. That does not make any sense. So we also should be ready always. So even in flights, also I carry such medicines. So as it was told that I had an opportunity to treat over 175 patients who were on the verge of death. That means they were such patients who could have died at any moment. किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो जाए ऐसी स्थिति में, मतलब जब तक हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें, हम लोग परीक्षण वगैरह करते हैं, तब तक वो हमें कोई चांस नहीं मिला. इस प्रकार से भी हो सकता है, ऐसा हुआ भी है कभी कभी. तो like that such patients 175, and in that even during this COVID period I had an opportunity to treat. Goa is a small state, but still I had an opportunity to treat around 45 ICU patients. Of course, that time, as the main treatment, Ayurveda was not allowed, but as an adjuvant treatment, Ayurveda was allowed. And in this, I would definitely like to mention that our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, he was very supportive for Ayurvedic doctors, and he encouraged Ayurvedic doctors that you do Ayurvedic treatment. And that's why we treated many patients during this period. I was very fortunate to learn some eminent Vaidyas in the field of Ayurveda, but specifically here I would like to mention about one of my gurus, late Vaidyaraj Vasanta Dattatreya Gautam, and because he mainly encouraged us to practice emergency treatments. He gave us for 1.5 years, we were going to his clinic after BMS, and 1.5 years every day we were asking him questions. Myself and Vaidya Vihir Navis, who is also, I think, somewhere present here. So we were daily asking him questions about emergency conditions. That in this condition, what we can do. मतलब हम लोग इस तरह से पूछते थे कि इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना. तो वो कहते थे क्यों नहीं? मैंने ऐसा किया है, इतने पेशेंट्स को ऐसा दिया है, ऐसा होता है. But that time he was 81 years old, and already he had practiced for 60 years. But he was very humble. And he used to say in certain conditions that इसमें मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे गुरु इस प्रकार से करते थे, ऐसा भी वो बताते थे. So he mainly encouraged us. So specifically I have mentioned about him. So he used to say that we should be ready with Ayurvedic emergency kit always, because any time that emergency may arise, and for that purpose we should be ready. So for that purpose, I'm using in my practice all kinds of medicines, not just Rasaushadhi. Single drugs, quats, everything I'm using. But for quick actions in such emergency conditions, Rasashastriya medicines are very much important. And when the patient is on the verge of death, within a few seconds when we want to start the action of the medicine, that time specifically this Pottali Kalpana is very important. So various Pottalis we have kept with us, and they help in such emergency conditions. So Pottali and a specific stone, that means for levitation, मतलब जैसे चंदन घिसते हैं उस प्रकार से. Then a small bottle of honey, madhu. Then many medicines with Ardhrakswaras, they act instantaneously. But that time we cannot search for Ardhrakswaras. Where is Ardhrak? Then we will bring out Swaras from that. So that will take a lot of time. So what he used to say that in one enamel vessel, keep Ardhrakswaras and let it dry, and that will be like Ardhraksatwa, and that you have to keep ready with you. Like that. And then we have to identify which are the important medicines which we always should keep with us so that we can treat emergencies. So mainly Pottalis, but even other medicines are also there that we should be keeping ready with us to treat emergencies. And for that purpose, as per him, there are 3 most important medicines which all Vaidyas should keep with them. They are Hemagarbha, Trailokya Chintamani, and Suvarna Sudhshekar. Actually, Sudhshekar itself contains Suvarna, the part of Sudhshekar, but since without Suvarna also Sudhshekar is available, that's why we are calling it as Suvarna Sudhshekar. 3 medicines always we should keep with us. So, in January 2020, a male patient of 68 years
he was having hypertension. That means this was the history from the modern side, which was available. Hypertension since last 10 years. He had alcoholic liver disease with cirrhosis, adenocarcinoma of stomach, and he had undergone chemotherapy in 2014 for that. Chronic alcoholic since 25 years. 3 times in a day, वो उसका आनंद उठाते थे. History of seizures and stroke at the end of 2019. And then he was taken to Goa Medical College Hospital and he was treated there. But since then he was unconscious and in a state of coma. And he was not responding to any modern treatment. So finally they discharged him and they told that you take him home. You take help of some local doctor and symptomatically you keep on treating him, but there are no hopes and our treatment is not responding. So there is no point in keeping him for long here. So he was at home. So this was one case where in many of the cases which I mentioned in ICU, in those cases modern treatment was going on and along with that we had to give Ayurvedic treatment. But this was a case like that. Certain cases are there in which only Ayurvedic treatment was given. So he was at home and he was not taking any modern medicine at that time. They were not working and he was in such a state. So this video I think is that PPT. So he was a short clip is there. Alright. So he was in such a state, even from that photo you can understand. Okay. So considering his condition at that time, we started him initially Suvarna Sudshekar, Vaidyanraj Gaikwad from Solapur. He has prepared one Navya Sudshekar with addition of certain medicines in Sudshekar. The part is not changed, but some additions are done to that. And with Suvarna Yukta, one Sutendra Rasayan we are using. That we used initially. And Amalaki Raktapachak and Dhamasa. That means even for Pachan, Anuloman, and for Shodhana of Raktagat Dosh, for all that also we selected the medicines which are not decreasing the bulk of the patient, which are not causing Haduksha. Such medicines we selected. That's why Amalaki for Pachan and Anuloman, Dhamasa. Then because there were part-like conditions in his body, so that's why Swarnaraj Mangeshwar was added. And because Grathit Rakta was present, and for the vilayana of that, and Haridra Ghana was added for that purpose, and Rasa Sindur was added in that, and Tapyadi Loha was added. In Ashtang Sangra there is one important reference. It is said that Indriya are also made up of Mahabhutas, so and therefore for active on Indriya, they have made that Mahabhut and Rakta Vahinam Srotasam Prasada Indriyani. So that's why even medicines acting on Rakta, they activate the Indriya and Sendriyam Chetanam Dravyam. So to protect Chetana, Indriya need to function. When Indriya stop functioning, because Indriya are the markers, Indriya mark the presence of Atma. We cannot see Atma, but presence of Atma can be understood on the basis of functioning of Indriya. So that's why Indriya need to act. So that's why Tapyadi Loha was added in it. Kukut regulates the gati of Vata. It is Medhya. And it also removes Grathit Dosh. So I am talking about brief about each medicine. Every medicine can be explained in details. Rasa Sindur, that was given in Vyan Udam Kal, because Vyan Vayu regulates all the movements, various movements on and on even Indriya. All the pran is having control over Indriya, but he was paralyzed. So on Peshi and other activities, Vyan Vayu controls them, and that's why that was medicines were given in Vyan Udam Kal, because we want to give it divided doses. That's why Vyan Udam Kal. That's why Rasa Sindur was added, which controls the gati of Vyana. Vyano Shigra Gatir Gunam. So that's why for controlling the gati of Vyana, potent medicines are many times required.
usually when we give the medicine, this totally we apply on the gums. We on a irrigation stone उसको घिसकर मसूड़ों पर मलते हैं उसको मध के साथ। तो इससे कुछ ही सेकंड्स में काम शुरू हो जाता है। जब पेशेंट आईसीयू में होता है और जो मॉनिटर्स पे होता है, तो मॉनिटर्स पे हम लोग इमीडिएटली कुछ ही सेकंड में उसके परिणाम देखना शुरू कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं, पल्स रेट में चेंजेस आते हैं, ये सारे चेंजेस, रेस्पिरेशन रेट में चेंजेस आते हैं, सारे चेंजेस हम लोग तुरंत देख सकते हैं मॉनिटर पर। कुछ ही सेकंड्स में काम शुरू हो जाता है। लेकिन ये पेशेंट घर पे था और जो घर के लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम लोग इतना जानते नहीं कि कैसे ये देना है, तो इसलिए वो राइस ट्यूब के द्वारा दे रहे थे उस पेशेंट को। जब राइस ट्यूब के द्वारा देते तो थोड़ा सा समय लगता है, फिर भी 3 से 4 दिनों में वो पेशेंट कॉन्शियस हो गया। ये इसका एक वीडियो क्लिक है, लेकिन अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम में दिखा नहीं रहे। So within 3-4 days the patient became conscious. Otherwise, in most of the patients with 1 or 2 doses applied on the gums, the patient becomes conscious on the same day, usually many times. But here, after 2-3 days, the patient was conscious, and then we continued our treatment, and the patient who was considered as a hopeless case, and anytime anything can happen, but he survived for 1.5 years, and during that so many other conditions came, like he got, as per the local doctors, he got severe UTI infection. So even that also we managed with Ayurvedic medicine. मतलब उसका जो पेशाब था वो सफेद कलर का था एकदम, मतलब दूध जैसा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्फेक्शन रहा उसका। तो उसको भी हमने आयुर्वेद की वो सब, क्योंकि उसको बाद में आयुर्वेद की चिकित्सा चल रही थी और कोई चिकित्सा चल ही नहीं रही थी उसको। तो सारे ही उसके जितने भी कंडीशंस आए उस बीच में, वो हम लोगों को ही मैनेज करना था। तो उसके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी मैनेज किया गया, और भी बीच में अचानक ज्वर आ गया, और उसी टाइम पे कोविड शुरू हो चुका था। तो सब लोग पैनिक में गया, इस हालत में इसको अगर कोविड हो जाए तो अब क्या होगा। इन फॉर्चुनेटली वो कोविड पॉजिटिव ज्वर नहीं था, फिर भी ऐसी कंडीशन में ज्वर आना ये धातुपाक का लक्षण हो सकता है, और जिससे बहुत गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उसको भी, ज्वर को भी तुरंत ही उसी दिन 2 बजे और शाम तक वो ठीक कंट्रोल में आ गया। तो ऐसी सारी चीज़ों को मैनेज करते करते, लेकिन वो दूर था, इसलिए हर बार हमें जाना और उसको देखना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी हमने जो जानकारी और वीडियोस वो लोग भेज रहे थे उसके आधार पर मेडिसिन भेजकर, क्योंकि वो पैंडेमिक का पीरियड था, उसमें रोगी को भी नहीं ला सकते थे और उसके रिलेटिव भी नहीं लाते थे। कई बार तो ऐसा था कि जो उस गांव के जो पुलिस होते थे ना, वो लोग ले जाते थे दवाइयाँ, या उस गांव में काम करने वाले जो सिस्टर्स थी उनको वो लोग बोलते थे कि प्लीज हमारी दवाई लेकर आओ। तो इस प्रकार की स्थितियों में ये सारी चिकित्सा चलती रही, और वो ही सर्वाइव फॉर 1.5 years, and he was conscious, but although he could not walk, but he was speaking to his family members. This is the This is the video when he became conscious, and he's talking to his sister, his daughter. After 3 to 4 days, this was the condition that patient, he became conscious. तो जब मेरे गुरुओं से मैंने ये सुना था कि इस प्रकार से वो पोटली दी जाती है और वो लगाने के बाद ऐसा ऐसा होता है, तो आप लोगों में से भी कुछ लोगों के मन में ऐसा पहले होगा, जैसा मेरे मन में भी था, कि क्या ये सचमुच संभव है, पॉसिबल है। ऐसा थोड़ा एग्जैगरेशन लगता है कि ऐसा वो लोग अपनी चिकित्सा का गुणगान करने के लिए ऐसा कहते होंगे। बट व्हेन आई यूज फर्स्ट टाइम, देन आई रियलाइज that way it really works, and so much effective Ayurvedic medicines are present, but we have to make use of them. Now about some critical conditions, but where immediate he was not in a state of verge of death, but some critical conditions. In 2017 October, a 62-year male patient, तो
तो यहाँ पे जो लिखा है रुक्षुल तीव्र दौर्बल्य, इसी प्रकार से हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हम लोग उसको हम लोग ग्रंथों से मिलाकर देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हेवीनेस इन आईज ऐसा कहने से वो बात नहीं बनती। जब हम कहते हैं कि नेत्र गौरव, तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा मज्जा नेत्रांग गौरव, तो उसका मज्जा से कोई संबंध हो सकता है। So that's why when we take history in Ayurvedic terminology, it helps. So that way only we are taking history. So he was in the evening. He was brought to our clinic. He was having Tivra Dorbalya, ISN Ashwas. He had vomited 2-3 times, and he was not able to walk a few steps also. Sudden profuse sweating. आयुर्वेदिक परीक्षण also is very important. तो बलहीन नाड़ी, अभी मैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ हर चीज को, क्योंकि इसके लिए समय लगेगा। उधर परीक्षण में विमूढ़वात ऐसा मिल रहा था, प्रभाहानि अंगकाश। तो इस प्रकार की स्थिति में वो था। ये रोगी same day he had gone to Goa Medical College Hospital and he told that he is having Brahma and he is not able to walk up 2 steps. So they sent him to ENT department. There they checked and they said that you are all right, you can go home. But he was having the problem, so that's why he came in the evening to my clinic. And then after we treated him, then he was sent for further investigations, and then it was because क्या है कि हम लोग ये मानकर खुश हो सकते हैं कि हाँ इसे हृदरोग था और हमने दवाइयाँ दी और वो ठीक हो गया, लेकिन सचमुच ऐसा इन्वेस्टिगेशंस में कुछ मिला था या नहीं। तो अगले दिन उसको फिर भेजा गया जब, तो इन दैट इन्वेस्टिगेशंस इट वाज फाउंड दैट ही वाज रियली हैविंग various problems related to heart space. Stress test was positive. He was advised surgery because there were blocks. So that's why it's not confirmed. But जब वो शाम को जब मेरे क्लिनिक में आया, उसी समय उसकी उस समय पर की जो स्थिति थी, विमूढ़वात, उदावर्तन और तीव्र दौर्बल्य, उन स्थितियों को देखते हुए और वोमिटिंग हो रहा था लगातार। तो उल्टी जो है वो आयुर्वेद की एक डोज से भी, आयुर्वेद की दवाइयों से उल्टी बंद हो सकती है। उसके बारे में भी बहुत सारे केसेस है। वो रेंजिंग फ्रॉम एक 11 महीने की बच्चे को लाया गया और जिसे रात भर में 10-12 उल्टियां हो चुकी थी, दूध में बदलाव के कारण ऐसा हो चुका था और रात से मूत्र प्रवर्तन नहीं हुआ था, तो डिहाइड्रेशन था, ये तो पक्का था। तो एक रसतरंगिणी में दूध के पाचन के लिए विशिष्ट योग दिया गया है, तो वो हमने बनाया हुआ था। उसको मध के साथ धीरे धीरे उसको चटाया और तब तक षडंग पानी सिर्फ परपटक को छोड़ के, क्योंकि कड़वा होने के कारण शायद वो छोटी बच्ची और उल्टी कर दे, उसको छोड़कर बाकी चीजों का हमने तब तक बनाया। और ये चाटने के बाद वो एक एक चम्मच उसको पिलाया। तो आधे घंटे में मूत्र प्रवर्तन हो गया, उल्टियां बंद हो गई और 1-1.5 घंटा ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसको घर पे भेज दिया। इस प्रकार के कई केसेस हो चुके हैं कि उल्टियां तुरंत हमारी एक डोज से भी बंद हो गई। तो इसलिए सबसे पहले ये जो रोगी था, इसको नव्य सुक्षेकर कपर जिस प्रकार से मध और नींबू के रस के साथ धीरे धीरे चाटने के लिए दे दिया, तो उनकी उल्टी बंद हो गई और नव्य सुक्षेकर होने के कारण इंद्रियों को और हृदय को बल भी मिला, तुरंत भ्रम भी कम हो गया। ये सब हुआ और इसके बाद में ये जो ऊपर लिखी है ये चिकित्सा दी गई उनको घर जाते समय। जहर मोरा ये बहुत सारी इमरजेंसी में काम आता है। मतलब वो हमारे गौतम सर ये कहते थे कि कुछ हो रहा है, मुझे मैं कह नहीं सकता कि क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो वो कहते थे कि जहर मोरा जो है अंतरों पर भी काम करता है, हृदय पर भी काम करता है और मस्तिष्क पर भी काम करता है। इसलिए पहले उसको जहर मोरा चटाओ, फिर उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर बोलो अभी ठीक से बताओ क्या हो रहा है, फिर आगे की चिकित्सा देना, तब तक उसको ठीक लगता है। तो ये जहर मोरा दिया गया था उसमें, और समान वायु का काम सुधारने के लिए और पचन और अनुलोम के लिए बाकी औषधि दी गई थी। त्रैलोक्य चिंतामणि 3 डोज दिए थे, लेकिन वो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको इसमें। वैसे हृदरोग में त्रैलोक्य चिंतामणि इज अ वंडरफुल मेडिसिन इन हृदरोग, बट हियर दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। So vomiting stopped with the first dose. Symptomatic relief was there in half an hour. Patient went home and took rest.
Then other tests were done. He is well till date. He is visiting our clinics if at all he is getting some problems. In brief, I will tell that over 350 patients up till now, जो श्वास का वेग, ऐसा ग्रंथों में वेग शब्द का उपयोग नहीं किया है, लेकिन श्वास का वेग हम कहते हैं जिनको, जो उसमें जो पेशेंट आए उनको वहीं पर वो मेडिसिन धीरे धीरे चाटने से मुंह काल एक 20 से 30 मिनट के अंदर उनका श्वास का वेग नियंत्रित हो जाता है। जो आसपास रहते हैं वो चल के भी कई लोग घर जा चुके हैं उसके बाद, और बाकी लोग जो है उनको जब श्वास का वेग आता है तो घर पे वो चाट लेते हैं। हम लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि नहीं इस हफ्ते में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, 1-2 बार ही ऐसा रात में तकलीफ हो गई सांस लेने में। तो क्या किया आपने? नहीं, वो पूड़ी आपने जो दी थी वो निकाली, मध के साथ धीरे धीरे चाट ली, तो मुझे जो तकलीफ थी वो बंद हो गई, तो सो गया मैं। So without any injection or inhaler or tape, this can be controlled, and in large number of patients we have observed this. Dehydration, I am not going in details of that, but as an intern, when I was working in PHC in my own village in district Pune, तो मैं इंटर्न था, लेकिन बाकी जो डॉक्टर्स थे वो साइन करके निकल जाते थे और मैं उसी गांव का था, तो मुझे तो करना ही था वहाँ पे काम। तो उस समय में एक कॉलरा का एपिडेमिक पूरा मुझे हैंडल करना पड़ा। तो उसमें जो पेशेंट्स थे उनके जो मोशंस थे वो रुक नहीं रहे थे किसी मेडिसिन से। तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन में ये बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग IV फ्लूइड्स देते रहेंगे, एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे, तब ये हो जाएगा डिलीवरी कंट्रोल। तो हमारी दृष्टि से तो वो निरामावस्था ही होती है। तो मेरे पिताजी भी, मतलब मैं भी पिताजी की तरह आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, ये कहना चाहिए। मैं ऐसा कहने वाला था कि मेरे पिताजी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, ये नहीं, मैं उनकी तरह आयुर्वेद की चिकित्सा करता हूँ। तो उनसे मैंने दवाइयाँ ली और वो पेशेंट को चटाई, तो वो 1-2 डोज में उनके मोशंस बंद हो गए और फिर IV फ्लूइड रिटर्न होने लगा। और दूसरे दिन तो एक बूढ़ा आदमी था जो अब क्या हालत हो गई उसका, मतलब बचा पाएंगे या उसको नहीं, ऐसी स्थिति में था, और दूसरे दिन चलने फिरने लगा। तो जो ऐसी स्थिति में, और बाद में वो जो मेडिकल ऑफिसर्स थे वो उन्होंने कहा कि फिर उसको कॉलरा होगा ही नहीं, ऐसा अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन से कैसे हो सकता है। हमने कहा रुकिए, उसके हमने उसका स्वैब लेकर भेज दिया है लैब में। उसका रिपोर्ट आने के बाद उनको दिखा है कि ये पॉजिटिव था। तो जो कॉलरा जिनको है उनके भी अगर मोशंस रुक सकते हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि बाकी लोगों के मोशंस तो रुक ही सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो उसमें आयुर्वेद के पास बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। बहुत सारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो आते हैं उनमें एटलीस्ट 120 पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनका 200 से ऊपर, और जो डायस्टोलिक है वो 120, 110 इस प्रकार का था। उनको 15 से 30 मिनट के अंदर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 160 के आसपास आ जाता है, जहाँ खतरनाक स्थिति नहीं है, इस लेवल पे आ जाता है हमारी दवाइयों से। अभी पिछले 2 हफ्तों में भी ऐसे 2-3 केसेस हो चुके हैं हमारी क्लिनिक। तो स्टूडेंट्स वो ऑब्जर्व करते हैं कि तुरंत थोड़ी देर बाद उनका ब्लड प्रेशर फिर से लेते हैं। तो इस प्रकार की औषधियाँ आयुर्वेद में। अब तक 73 ऐसे पेशेंट्स हो गए कि जिनका 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाज देयर, एंड विद आयुर्वेदिक मेडिसिन्स immediately within 20 to 30 minutes it came down to 101 or less, and then it's completely gone. In majority of these patients they were having samajwar or navajwar sam avastha, but one case was very much different, so that's why only that I am presenting here. That 26 years old girl came to my clinic 2020. So temperature was 104.2 degree Fahrenheit. Shaitya, Daurbalya, Angamars, Shirashur, Ullas, all these symptoms were present. And she was having history that she had undergone renal calculus removal. अब वो एक अलग ही बात है, उसमें भी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स बहुत इफेक्टिव है। 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन्स भी आयुर्वेद की मेडिसिन से जा चुके हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। लेकिन अब वो पहले ही ऑपरेट करके आ चुकी थी। तो स्टेंट वाज रिमूव्ड ऑन 24 फरवरी, और फिर वो हमारे पास आ गई। उसने एब्रेटली मॉडर्न मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स वगैरह थे वो बंद कर दिए थे, एंड ड्यू टू दैट सो एक प्रकार का शरीर में पाक की स्थिति थी, और उसके कारण ये ज्वर था। तो एक बिल्कुल अलग स्थिति थी, मतलब एक विष जैसी स्थिति शरीर में है, पाक हो रहा था खून का, ऐसी स्थिति में ये था। तो इसके आधार पर 5:40 PM को 104.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, तो इनको
नव्य सूचिकर सप्तपर्णादि एक योग रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह में एक अनुभवी वैद्य उनका योग है। गुरुचिकन शुभ्रा और स्वर्णराय मंगेश्वर पाक को रोकने में बहुत इफेक्टिव है, इसलिए वो दिया था, और दारू ऐसा दिया, और आपातकाल में वो तो ये तुरंत दे दिया था। और उसके साथ पटोलाजी बात दे दिया है कि निहंती कपपित्त पुस्तक ज्वरम विषम वमिमालोचकम कामला। सो दैट वाज गिवन along with that. That was the first dose, and the other dose which is mentioned in आपातकाल that she took when she went home. तो 5:40 के बाद 6 बजे उसका टेम्परेचर 101 तक आ चुका था। तो इतनी जल्दी ये परिणाम हो जाता है, और उसके बाद में वो तुरंत अगले दिन पूरी तरह से लक्षण उसके चले गए, सारे लक्षण। तो इस प्रकार से 73 पेशेंट अब तक हो चुके हैं, और ये इसमें कुछ हमारे घर के केसेस भी शामिल है। ऐसा नहीं कि बाकी बाहर के लोग आए तो उन पर एक्सपेरिमेंट करो, और जब घर की बात आए तो चुपके से उनको वो दे दो, ऐसा नहीं। जहां तक हो सके हमें कोशिश करनी है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी इमरजेंसी आए तो तुरंत हम लोग ठीक करेंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि मेरा अनुभव कम पड़ रहा है यहाँ पे, मैं नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद में ऐसे ट्रीटमेंट नहीं, जहाँ मेरा अनुभव कम पड़ रहा है, मुझे अगर लगता है कि मेरे अनुभव के अनुसार इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, लेकिन मॉडर्न इसमें हो सकती है, तो पेशेंट के इसमें हम जरूर उसको रेफर करेंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए जहां तक हो सके। हिक्का के अब तक 45 पेशेंट, अभी पिछले 2 हफ्तों में भी 2-3 पेशेंट आ चुके हैं। उसमें से एक पेशेंट ऐसा था कि जिनका हार्ट का ऑपरेशन प्लान था, लेकिन उनको हिचकी चल रही थी और वो बहुत परेशान थे, पहले ही हार्ट पेशेंट है, तो उनको तुरंत ही हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके अनुसार उनको वहीं पे तुरंत आराम मिला। तो वो बाद में आकर कह रहे थे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके आयुर्वेदिक चिकित्सा को, क्योंकि मैं इतना परेशान था, 3-4 दिन से मैं सोया नहीं था और मुझे तुरंत लाभ मिला। तो कुछ ऐसे पेशेंट थे कि फॉर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स दे वर ऑन द ट्रीटमेंट। अब जो कुछ ऐसे पेशेंट आए कि उनको किसी ने कह दिया, वो कहीं एडमिट था मॉडल हॉस्पिटल में, उसने कहा कहाँ यहाँ पड़े हो गए, बहुत दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हो, चलो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से तुरंत होता है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि आने के बाद हम लोग कहते हैं कि थोड़ी देर आप रुकिए यहाँ, हम यहीं पे आपको कुछ ट्रीटमेंट दे देंगे। तो बोले चिंता मत करो, हिचकी रुकने के बाद ही मैं जाने वाला हूँ, मुझे बताया मेरे पड़ोसी ने कि ये हिचकी तुरंत रुकती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो जब रुकेगी तभी मैं जाऊँगा, चिंता मत करो। तो एक केस में उसको संक्षेप में दे रहा हूँ कि अब ये 2017 की है, अभी रिसेंटली हुए कि 70 साल के जो है उनको 4 दिन से कंटिन्यूस हिकअप्स, एंड फॉर दैट पर्पस ट्वाइस ही वाज एडमिटेड टू मॉडल हॉस्पिटल। अब तो ये विशेष बात, जो परसों एक पेशेंट आया था ना, उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर ने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन में इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहाँ तक ये सच है, वो तो उनके एक्सपर्ट्स को पूछना पड़ेगा। तो ही वाज नॉट गेटिंग रिलीफ, सो ही केम। सो एक पर्टिकुलर पैटर्न हम फॉलो करते हैं कि तुरंत ये ग्रंथों की चिकित्सा के आधार पर ही है, लेकिन अब मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा कि अष्टमधु तेल और सैंधव का यहाँ पे नस्य दिया उनको पहले, फिर स्नेहन स्वेदन किया, मतलब लवण तेल लेकर उसको लगाया और स्वेदन किया, नाड़ी स्वेद। फिर उसके बाद में इंटरनल मेडिसिन, सूत शेखर, पिप्पली, आमलकी। पिप्पली और आमलकी ये विशेष संयोग वहां पे बताया गया है चरक संहिता में ग्रंथ में, तो उसको दिया समीर पंडित, और इसको मुंह मध के साथ चाटने के लिए, मतलब तुरंत चाटना नहीं, थोड़ी देर चाट कर थोड़ी देर रुकना है, फिर थोड़ा सा चाटना है, इस तरह से 20 मिनट 25 मिनट चाटना है, तब तक हिचकी बंद ही हो जाती है। तो उसके बाद में तुरंत हिचकी बंद हो जाती है और वो रोगी को आराम मिल जाता है। इस प्रकार से 45 पेशेंट्स अभी तक कम से कम हुए हैं। तो ये तो इस पेशेंट के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि यही सब में होगा। अभी आखिरी मैं एक ये कह रहा हूँ कि एक पेशेंट, जैसे एक 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, वो इवनिंग में 7:30 मेरे क्लिनिक में पहुंचा, और मैं देख रहा था सीसीटीवी से कि वो लेटा हुआ है, किसी तरह से वो हिस्ट्री मतलब बता रहा है कि क्या तकलीफ है। तो मैंने बोला कि इसको पहले ले लो, क्या हो रहा है उसको। तो उन्होंने बताया कि इसकी न्यूमोनिया की हिस्ट्री है, 3 बार न्यूमोनिया हो चुका है, अब भी फीवर, ही वाज हैविंग फीवर एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सीवियर पेन इन राइट फ्लैंक, एंड ऑन द सेम डे he had gone to Goa Medical College Hospital and he was diagnosed as having gallbladder polyps and gallstones, and he was telling that the doctors told that was antibiotic induced. I am not blaming him. He told me. So there was no pain relief with
दैट मीन्स वो गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जब मेरे क्लिनिक तक पहुंचाती लगभग 35 किलोमीटर है, तो उसको इतना पेन था कि उसने बीच में बैरलडेन या कोई इंजेक्शन ले लिया एक मॉडर्न डॉक्टर से, लेकिन फिर भी उसको रिलीफ नहीं था, तो इसलिए वो एक जमीन पर रोल कर रहा था, लगभग इतना पेन था उसको आने के बाद। तो हमने जो मेडिसिन दिए उससे हम लोग सीसीटीवी से देख रहे थे, वो 15 मिनट के बाद वो लेटा हुआ था। तो हमने बोला क्या हुआ भाई, तो बोला कि नहीं मैं अभी दिन भर परेशान था पेन से, लेकिन अभी मेरा पेन बंद हो चुका है, इसलिए मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, थोड़ी देर में सोता हूँ। तो उसी रात 1-2 घंटे के बाद उसका फीवर चला गया, और जो उसका बाद में पता चला कि उसका प्लूरल इफ्यूजन था, तो वो उसने गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसी दिन रिपोर्ट निकाला था, लेकिन दूसरे दिन वो फिर गया अपने आप ही और उसने फिर रिपोर्ट निकाला, तब तक भी वो प्लूरल इफ्यूजन काफी कम हो चुका था, मतलब एक ही रात में। और उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा ठीक हो गया प्लूरल इफ्यूजन, और इसी यूएसजी निकाल के वो कंफर्म किया गया। तो उसको तुरंत जो दवाई दी गई थी वो था अगस्ती सूत्रज और कपर्दिक सर्जिक्षार धमासा, इस प्रकार से संयोग देते हैं, और श्वेत फल ये उसको तुरंत दिया गया, जिससे उसका शूल तुरंत ही कम हो गया विदिन 15 मिनट्स। उसके बाद में ये आगे की चिकित्सा उसको दी गई, जिसमें श्वास, ज्वर, ये सबको अंतर्भूत करते हुए नव्य सुक्षेकर वासाधारवी, गुरुची घन, कंटकारी, अर्कपुष्प और समीरकंद, तो इसको दिया गया। और समान वायु की गति सुधारने के लिए और पित्त का स्राव ठीक प्रकार से हो, इसके लिए कपर्दिक सर्जिक्षार धमासा, श्वेत परपटी और एक सोलापुर के वैद्य गायकवाड़ उनका कॉम्बिनेशन शामक मिश्रण वो दिया गया, और कृमिकुटार्कमी के भी कुछ लक्षण थे इसमें। तो इस चिकित्सा से तुरंत उसको फायदा हो गया, और दूसरे दिन तक काफी उसकी स्थिति में सुधार हो गया। सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू give lecture on this topic in different parts of the country, and now what I am doing is that on a particular topic, suppose Hikka, different cases related to Hikka, different cases related to Hudok. So on a particular topic I am talking, but here I have summarized different topics. One example I have tried to give you. So this topic is vast. According to emergency medicine college in USA, there are around 1700 conditions which can be called as emergency. So first of all, do we know all these conditions? We have heard names of all these conditions. तो ये नहीं हमने कहना चाहिए कि हाँ मैं आर्थिक चिकित्सा का एक्सपर्ट हूँ, अभी बहुत बड़ा फील्ड है, एकदम हम लोग ये क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेद में एक क्षमता है कि ऐसी स्थितियों को भी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, ये आयुर्वेद में क्षमता है। सवाल ये है कि हम लोग आयुर्वेद को कितना जानते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि ये ना कहें कि ये चीज आयुर्वेद में नहीं है, हमें ये कहना चाहिए कि ये चीज मुझे पता नहीं। आयुर्वेद में तो कितने बड़े बड़े विद्वान पूरे देश में, पूरे विदेशों में भी अब तो फैल चुके, तो मुझे नहीं पता है तो और किसी को शायद हो सकता है पता, तो आयुर्वेद में नहीं है ये नहीं कहना चाहिए, ये मैं नहीं जानता हूँ। तो आयुर्वेद में बहुत बड़ा पोटेंशियल भरा हुआ है, लेकिन हमने कहा पूरा आयुर्वेद समझा। तो जहाँ जितना आयुर्वेद हमने समझा है उसके आधार पर हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए, और हमारी क्षमता को बढ़ाते रहने का प्रयास करना चाहिए अपना अभ्यास को और अनुभव को जोड़ते हुए। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग ये जो लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है कि आयुर्वेद की दवाइयों से धीरे धीरे परिणाम होता है या आयुर्वेद सिर्फ क्रॉनिक इसके लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद क्रॉनिक, एक्यूट, इमरजेंसी सबके लिए आयुर्वेद है। सवाल ये है कि हम लोग कितना कर पाते हैं उसका उपयोग। तो ये उसके बाद में रिपोर्ट्स थे, अभी यहाँ आप शायद ठीक से देख नहीं सकते स्क्रीन पर। पेन के लिए ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद में पेन के लिए मेडिसिन नहीं होता है। हर अध्याय में जहाँ जहाँ पेन की संभावना है वहाँ मेडिसिन दिए गए हैं। ज्वर के अध्याय में कौन से पेन हो सकते हैं वहाँ उसका सवाल है कि वो एक टैबलेट नहीं होगा, शायद वो स्नेहन स्वेदन होगा, शायद लंघन होगा, अद्रव्य चिकित्सा भी हो सकती है, आहार कल्पना हो सकती है, अलग अलग तरीके से। लेकिन पेन के लिए भी आयुर्वेद में चिकित्सा है। इसके ऊपर स्वतंत्र व्याख्यान के विषय और दे चुका हूँ मैं कुछ जगह, तो अभी मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तो आखिर में यही कहना चाहिए कि न वैद्या प्रभुरायुषा, इसलिए हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और मैंने सभी कुछ कर लिया। लेकिन आयुर्वेद इतना एक महान शास्त्र है कि उसको हम लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग काफी कुछ ऐसे रोगियों को लाभ दिला सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग भी इसको प्रयास करें, और आप लोगों के मन में अगर ये गलत धारणा है कि आयुर्वेद ये सिर्फ क्रॉनिक कंडीशंस के लिए, तो इसको निकाल दें आप। और इस प्रकार की सब लोग कोशिश हम लोग करेंगे तो हम लोग समाज में बदलाव ला सकते हैं। और जब हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं
तो हमें प्रथम स्थान समाज में प्राप्त होता है। नहीं तो ये कहा जाता है कि हाँ आयुर्वेद से धीरे धीरे परिणाम होता है, देखेंगे, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, और अगर नहीं हुआ तो जो फिर मॉडर्न डॉक्टर से उनके पास जाएंगे वो तो है ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी प्रथम स्थान पर मतलब प्रायोरिटी से हमारा विचार समाज करे, इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग इस विषय का अध्ययन करें। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की, जो पहले ही ये सब थोड़ा सा हम लोग विलम्ब से शुरू किया था और मैंने भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, मुझे यहाँ पे अवसर दिया गया और विचार प्रस्तुत करने, इसलिए मैं आयोजन का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर।